Good morning, student. Welcome to all of you in the home mentoring session from the SD Vidya School. Myself, Ritu Mittal, mathematics teacher. Student, as we are doing the chapter 4, that is determinants. In the last video, we had done till the exercise 4.3. Till the 4.3, we had done the properties of determinant. We find out the value of determinant and the area of the triangle. These three things we already had done. Now the today's topic is minors and cofactors. So let's start it. First of all, I am telling you the definition of minors and cofactors. Minor of an element Aij of the determinant is determined, obtained by deleting its ith row and the jth column in which element Aij lies. Minor of an element Aij is denoted by Mij. Minor of an element of a determinant of order n is a determinant of order n minus 1. Here I am just explaining you how to find out the minor. This is just a simple definition. Let's take an example so that you will get more clear ki how can you find out the minor. Let's start. Here in this question we have to find out the minor of element 6. In this question they are asking particular about this 6th element. This one element is the 6th element and we have to find out the minor of it. Basically what we have to do, like in this determinant there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 elements. So from each element we can find out the minor. Like for 1, 1 at particularly this position we have a different minor, for this position we have different, and for this in the similar way for each element we have a different minors. Like if we have to find out the minor of this position, then we have to apply M11, this one M12, M13, like this. In this question they are asking for the element 6 we have to find out the minor. So I am just explaining how can you find out the minor. जिसमें ये एलिमेंट 6 आया हुआ है उस रो और कॉलम को हम नहीं लेंगे, कंसीडर करेंगे दिस रो एंड दिस कॉलम एज वी डू इन द डिटर्मिनेंट, जैसे हम डिटर्मिनेंट में करते हैं. तो ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया. तो व्हाट इज लेफ्ट हियर 1 2 7 8, 1 2 7 8. नाउ द नेक्स्ट इन द सिमिलर वे we have to do the cross multiplication. 8 into 1 8 and 7 into 2 14, and there will be a negative sign. So 8 minus 14 is minus 6. So this is the minor of the position 2 3. This position is 2 3, so the minor is minus 6. So in this way we can find out the minor. Let's take here also I had done the same thing. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 6 एलिमेंट का हमने माइनर निकालना है. तो इट्स पोजीशन इज़ 2 3. तो अभी मैंने बताया ये रो और ये कॉलम हम नहीं लेंगे, तो हमारे पास एलिमेंट क्या बच जाएगा 1 2 7 and 8. 1 2 7 8 वी विल राइट डाउन दीज एलिमेंट्स, एंड आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 8 minus 14 that is equal to minus 6. Now the next topic is cofactor. Cofactor of an element Aij denoted by capital Aij is defined by Aij is equal to minus 1 to the power I plus j capital Mij, where Mij is a minor of Aij. अब cofactor और minor में difference क्या है, बस छोटा सा है. What is the difference? Difference of this minus 1 to the power I plus j. जिस पोजीशन पे एलिमेंट हमें निकालना है उन दोनों पोजीशंस को हम यहाँ ऐड करेंगे एंड देन वी कैन फाइंड आउट द कोफैक्टर. अब जैसे हमने ऊपर वाला ही लेते हैं हम एग्जाम्पल. हमने 6 ये जो एलिमेंट था इस पोजीशन एंड दैट मीन्स 2 3, यहाँ पोजीशन क्या होगी सेकेंड रो थर्ड कॉलम. तो इसका हमने ये माइनर निकाला. अब हम जब कोफैक्टर निकाल रहे हैं तो इसी के आगे हमें क्या लिखना है minus 1 to the power I plus j into minus 6. ठीक है, आई जे की वैल्यू कितनी है 2 and 3. 2 plus 3 कितना हो गया 5. सो minus 1 to the power 5 minus 6. यही देखिए हमने यहाँ पे भी किया है. अब नेगेटिव टू द पावर 5 दैट विल बिकम पॉजिटिव, सॉरी नेगेटिव, एंड दिस इज ऑल्सो नेगेटिव. सो नेगेटिव नेगेटिव इट विल बिकम पॉजिटिव, क्योंकि ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर पे नेगेटिव रिमेन सेम, तो वो एज इट इज़ रहेगा. आई होप दैट ऑल ऑफ यू गेट क्लियर दिस. लेट्स टेक एन अनदर एग्जाम्पल. इसे थोड़ा और क्लियर करने की ट्राई कर रही हूँ मैं आपको, ताकि आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स दोनों ही समझ में आ जाए.
अब मैं इसमें देखती हूँ 1 -2 4 3, यहाँ पे ये सारे एलिमेंट्स दिए हुए। तो अब मुझे माइनर निकालना है, तो M11 का, तो ये रो और ये कॉलम छोड़ देंगे, तो व्हाट इज़ लेफ्ट 3। M12 दैट मीन्स -2 वाली पोजीशन का निकालना है, दिस रो एंड दिस कॉलम वी विल लेफ्ट, 4 इज़ हेयर। M21 दैट इज़ -2, इन द सिमिलर वे M22 दैट इज़ इक्वल टू 3। ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम हमारे काम कर रहे हैं को फैक्टर्स। अब को फैक्टर में हमने सेम क्या करना है, जो भी ये वैल्यू है इसके आगे, माइनस की वैल्यूज़ के आगे वी विल राइट डाउन -1 टू द पावर i प्लस j। यहाँ i j की वैल्यू कितनी है 1 1, तो 1 + 1 2, तो इट विल बिकम +1, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 3। A12 -1 टू द पावर 3, तो नेगेटिव वैल्यू -4। A21 -1 टू द पावर 4, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा एंड इट विल बिकम -2। ठीक है, एंड द लास्ट A22 -1 टू द पावर 4 और 3 यहाँ पर है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, दैट मीन्स 3। अब इसके बारे में एक और नोट दिया हुआ, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाइड विथ को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो और कॉलम देन देयर सम इज़ 0। इस रिजल्ट को एक बार मैं भी प्रूफ करके भी दिखाऊंगी क्वेश्चन के अंदर। बेसिकली इसमें क्या बोला है, इफ़ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम आर मल्टीप्लाई विद द को फैक्टर ऑफ एनी अदर रो एंड कॉलम। इसी में जैसे मैं बताती हूँ, जैसे अगर हम लोग लेते हैं कि ये वाली रो है, इसके जो एलिमेंट है इनको हम इस वाले रो के हम लोग को फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करें, देन वी गेट द आंसर 0। तो हमारा आंसर कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये हमें इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, तो चलिए लेट वी स्टार्ट विद द एक्सरसाइज 4.4। इन द 4.4 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ दीज एलिमेंट्स। ठीक है, तो लेट इज स्टार्ट विद इट। तो ये सिंपल सा हमें 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स दिया हुआ है एंड वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर। तो फर्स्ट पोजीशन M11, 3 इज़ द M12, ये और ये लीव करेंगे तो व्हाट इज़ लेफ्ट 0। M21 दैट विल बी -4, M22 दैट इज़ 3। सिंपल सा काम करना है, को फैक्टर्स में इनके आगे -1 टू द पावर i प्लस j लगाना है। ठीक है, तो 3 हो जाएगा, 0 के आगे तो कुछ भी लगाएंगे तो 0 ही रहेगा। नेक्स्ट A21 -1 टू द पावर 3, -4 नेगेटिव नेगेटिव, इट विल बिकम पॉजिटिव। A22 -1 टू द पावर 4 इंटू 2 दैट विल बिकम 2। सिंपल है, लेट वी डू विद द क्वेश्चन नंबर 2 सेकेंड पार्ट। अगेन वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर्स एंड को फैक्टर। ये हमारे पास मैट्रिक्स दिया हुआ है, लेट वी फाइंड आउट द माइनर। तो हर एक पोजीशन का माइनर निकालना है। तो M11 का ये रो और ये कॉलम हमने छोड़ दिया, व्हाट इज़ लेफ्ट 5 -1 1 2। इसको सॉल्व किया, वी गेट द 9। मैंने साथ साथ ही को फैक्टर्स भी निकालनी है। इसके आगे हमने क्या लिखना है, -1 टू द पावर 2 दैट विल बिकम पॉजिटिव, तो ये 9 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट निक करते हैं M12। तो हमारे पास ये एलिमेंट्स आ गए एंड वी गेट द 6। अब 1 2 दैट मीन्स क्या हो गया है, ऑड नंबर्स आ गया है, तो माइनस साइन लगा देंगे। M13 पे वी गेट द 3 आंसर। 1 + 3 4, तो पॉजिटिव एज इट इज़ रहेगा। 2 1 -4, ये क्या है हमारा ऑड नंबर है, तो इट विल बिकम अपोजिट साइन। यहाँ नेगेटिव था तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा। सिंपल सा काम करना है। M22 2 आ गया, नंबर क्या हो गया इवन, परफेक्ट, तो इट विल बिकम पॉजिटिव नंबर। M23 1 2 3 5 नंबर हो गया है, दैट मीन्स ऑड नंबर, सो नेगेटिव साइन विल कम हेयर। M31 -23 + 1 इट विल बिकम 4, तो ये हमारा इवन नंबर हो गया, तो एज इट इज़ -20 आ जाएगा। 32 -13 ऑड नंबर, -2 पॉजिटिव। 3 3 5 even number, so it will be same as like that. I hope that all of you get clear this concept. Chalo, let me do the question number 6 now. Sorry, question number 3. Using factors, cofactors of element of second row, we have to evaluate it. हमें कौन सी रो के इन्होंने बोला है कोफैक्टर्स यूज़ करने, सेकेंड रो के, एंड देन वी हैव टू इवेल्यूएट, देन वी हैव टू सॉल्व इट। इट मीन इज दिस। ठीक है, तो चलिए हम करते हैं।
दिस इज़ द मैट्रिक्स वी हैव 5 3 8 2 0 1 1 2 3। तो हमें सेकेंड रो लेनी है, तो सेकेंड रो कौन सी है हमारी, अगर हम इसमें देखें तो दिस इज़ द सेकेंड रो। ठीक है, चलिए लेट वी स्टार्ट विद इट। अब हमने सेकेंड रो लिया है तो क्या होगा, हमारे पास हमें एलिमेंट्स कौन कौन से, ये और ये रो एंड कॉलम वी हैव टू लीव। तो व्हाट इज़ लेफ्ट 3 8 2 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट ज़ीरो, हमने ज़ीरो से मल्टीप्लाई नहीं करना है तो वी जस्ट लीव इट 5 8 1 3। माइनस क्योंकि कोफैक्टर हम लोग निकाल रहे हैं तो -1 टू द पावर 3, नेगेटिव साइन आ गया तो इट विल बिकम पॉजिटिव क्योंकि अंदर भी नेगेटिव है। 2 + 2 इट विल बिकम पॉजिटिव, तो इसको सॉल्व किया तो 7 आ जाएगा। इन द सिमिलर वे वी हैव टू फाइंड आउट द 2 3 हमने निकाला एंड देन वी कैन फाइंड आउट लाइक दिस। अब हमें कोफैक्टर्स करने के बाद इसको इवेल्युएट करना है। इवेल्युएट मतलब जैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है, आगे वो एलिमेंट भी आता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 2 से फर्स्ट उसको मल्टीप्लाई किया, 0 से सेकेंड एलिमेंट को, 1 से थर्ड एलिमेंट को। ठीक है, वही काम हमने किया एंड आफ्टर सॉल्विंग इट बेसिकली डिटर्मिनेंट निकाला है हमने और कुछ नहीं किया। तो वी गेट दिस आंसर 7. So in this way we have to do this exercise. I hope that all of you get clear. Thank you student and have a nice day.